آج کی اس تقریب میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اقبال آڈوانی صاحب، آپ سیونگ ہوم کے سی ای او ہیں اور MLF UAE چیپٹر کے چیئرمین ہیں، آڈوانی فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ سر، آج یہ مقصود میمن موتی والا صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، شخصیات کو اجاگر کیا ہے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، آج اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اجاگر کرنا چاہیے، جو سوشل لیڈر ہیں، جو فلاحی کاموں میں کام کیا ہے، خدمت کی ہے، ان کا نام آنا چاہیے سب کے سامنے۔ اچھا ایونٹ، اس طرح اور ایونٹ ہونے چاہیے۔ میڈیا کا بھی میں تھینکس ادا کروں گا کہ میڈیا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے۔ ہماری کمیونٹی کے جو میمن میڈیا ہے کافی اچھا کام کر رہی ہے۔ ہمارے جو لیڈر جو کام کر کے گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان سب کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کا نام لا رہے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ان کی پہچان ہو رہی ہے۔ آئی تھنک بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ مقصود بھائی کو میں مبارکباد دوں گا، میڈیا کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا اقبال بھائی، یہ مہنگائی کا دور بہت دور ہے، بجلی کے بلوں پر بھی لوگ بہت پریشان ہیں، اس بارے میں کیا حکومت کو تجویز دیں گے آپ؟ دیکھیں، حکومت تو جو اپنے حساب سے کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو زیادہ ریلیف دے پائے گی، کیونکہ حکومت تو IMF کے معاہدے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ عام آدمیوں کو آگے آنا پڑے گا، ہماری جماعتوں کو آگے آنا پڑے گا، ہماری فورم، آرگنائزیشن، جماعت، فیڈریشن، ہر عام آدمی کو آگے آنا پڑے گا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ خاص کر کے جو الیکٹرک کا جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ ایک سیریس اختیار کر گیا ہے۔ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے پرابلم کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے سب کو کہ 300 یونٹ تک کے جو بل ہیں اس کے آدھی پیمنٹ ہماری جماعت ہے، فیڈریشن اور باقی جو بھی فورم، آرگنائزیشن، وہ کریں اپنی اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، اپنے قریب کے لوگوں کے۔ انڈیویجولی آپ رشتے دار ہیں، جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، جو پرانا آپ کا اڑوس پڑوس ہے، ان کو آپ الیکٹرک کے بل میں سپورٹ کریں تو یہ پرابلم سالو ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس بہت شکریہ۔ یہاں پہ تشریف فرمائے ہم لوگ، اور یہاں پہ مقصود میمن کی جو کتاب ہے ان کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور لانچنگ سرمنی ہے اور ڈنر کا انتظام ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس مشہور و معروف سماجی رہنما محمد صدیق سوار پٹنی صاحب موجود ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تقریب آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام جو مقصود موتی والے نے جو اپنے یہاں پر منعقد کی ہے، ماشاءاللہ ان کی کتاب کی لانچنگ ہو رہی ہے آج، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اپنے برادری کے لیے بڑی ان کی خدمات ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ برادری کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کتاب کی انہوں نے لانچنگ کی تھی، آج یہ دوسرا موقع ہے جو یہاں پر چیدہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، سیاسی اور سماجی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو میری طرف سے مسعود میمن موتی والا صاحب کو بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہیں کتیانہ میمون ایسوسی ایشن کے حاجی عثمان پردیسی صاحب، آج ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ تشریف لائے یہاں میمن شخصیات کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، کیا فرمائیں گے آج یہ مقصود میمن کی اس کاوش کو؟ ماشاءاللہ ہاؤسفل جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو مقصود میمن صاحب کو، کریم میگانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے میلہ سجایا ہوا ہے، اور واقعی ان کے پاس میمنوں کی ہسٹری موجود ہے، اور اپنا مقصود میمن صاحب ہیں، ان کے پاس پوری میمنوں کی ہسٹری ہے، اور اس طرح ہر سال یہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اور لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے میمن کی کیا ہسٹری ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں ان کو سب کو مبارکباد، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ حاجی صاحب۔ قیام پاکستان کے بعد صنعتوں کا ایک جال کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر اور مشرقی پاکستان کے اندر بٹھایا، لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کیے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کیا۔ اس کے لیے پاکستان کے لیے بہت خدمت کی، لہذا میں صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آئندہ پالیسی بنانے میں میمن برادری کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، ان کی معاشی پالیسی اور ان کی فلاح و بہبود کی تعلیم کی پالیسی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور ملک کے لیے اگر یہ مشینری کے اندر کام کریں تو انشاءاللہ العزیز ملک بہت ترقی کرے گا اور کفایت شعری بھی ہوگی۔ میں آپ تمام خواتین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور
آپ کی تشریف آوری کے لیے میں شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ادا کرتا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے میری بھرپور مدد فرمائی. لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کی کتاب رکوائی کی تقریب اور بزنس ایوارڈ سیرمنی کی اس عظیم الشان تقریب میں تمام شرکائے تقریب کو قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر آج سنڈے کا دن بھی ہے اور یہاں تشریف لائے اور میری حوصلہ افزائی کرائی. شکریہ. آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہماری میمن کمیونٹی میں افراد جو ماشاءاللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ صرف کاروباری نہیں بلکہ سماجی کام بھی کر رہی ہے. میں آج کی اس تقریب میں سب سے پہلے میں قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا محمد حفیظی صاحب کا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان کا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی، میری حوصلہ افزائی ہوئی کہ خالصتاً شہر کراچی کے اندر جو آج یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، صرف اور صرف اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے اور میمن برادری کے اجتماع میں شرکت کی. میں سب کی طرف سے آپ کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. زبردست تالیاں ہونا چاہیے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد حفیظی صاحب جو اسلام آباد سے یہاں پر اپنی موسیقیات چھوڑ کر آئے. میں ساتھ ہی ہمارے آج کے صدر جلسہ آج محمد رفیق پردیسی صاحب جو کسی طور تعارف کے محتاج نہیں. مرزا صاحب کچھ چند شخصیات کے بارے میں آپ کو میں تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہماری یہاں پہ جو بیٹھی ہیں تقریباً آپ سب پاکستان کی معیشت بیٹھی ہیں، اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ میمن برادری پورامن برادری ہے، کاروباری برادری ہے اور کاروبار کے ساتھ سماجی کام میں بھرپور حصہ لیتی ہے. جناب مرزا صاحب آج کی تقریب میں ہمارے جان محمد گاندھی صاحب تشریف یہاں آئے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جان محمد گاندھی صاحب کے بڑے بھائی حاجی رضا گاندھی صاحب، ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ورلڈ ویمن فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کے وہ فاؤنڈر صدر میں سے تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو ایک انٹرنیشنل باڈی بنائی گئی تھی ورلڈ ویمن آرگنائزیشن، ان کے پریزیڈنٹ رہے اور ماشاءاللہ کراچی پورے پاکستان میں دنیا بھر میں بہت کام کیا ہے. اور ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہے. میں ساتھ ہی ہمارے منسٹر سابق وفاقی وزیر امین الحق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امین الحق صاحب آپ کی ماشاءاللہ میمن برادری سے بڑے ہی زیادہ قریبی مراسم رہے. میں آج کی تقریب میں آپ کے درمیان برابر بیٹھے ہوئے ہمارے چیئرمین عبدالکریم میگانی صاحب ہیں. عبدالکریم میگانی صاحب 30-35 سال سے الحمدللہ منہ مبارک کی زیارت اور خلاف کعبہ کی زیارت اور اس کے علاوہ آب زمزم جو مدینہ شریف سے پیور آب زمزم اور مدینہ شریف کے ازوا حضور منگواتے ہیں، اور ہر سال نمائش کے اوپر جو استقبالیہ کیمپ لگاتے ہیں اور جلوس کے اندر جو شرکا ہوتے ہیں ان کو 2 دن سے جو ہے 2 دن تک جو ہے خواتین کو مرد کو جو ہے یہ عام مفت کھلاتے ہیں. اور ماشاءاللہ 35 سال سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے کریم میگانی صاحب جو آج کی پروگرام کے تقریب کے میزبان بھی ہے. اس کے ساتھ ہمارے اقبال آڈوانی صاحب بیٹھے ہوئے آڈوانی فاؤنڈیشن کے ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر وقت تعاون کرتے رہتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مرزا صاحب ان کے برابر میں حاجی عبدالمجید پردیسی صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا کہ حاجی عبدالمجید پردیسی صاحب جو گیگا فیملی جو ہے انہوں نے بھی قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان سے بعد بھی ماشاءاللہ معیشت کی بحالی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں ان کی آمد کا. مفتی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور خدا پشمری صاحب ماشاءاللہ نگراں منسٹر بنے. سر میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ہمارے یہاں ارشد کھپا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے ہماری برادری کو جو ہے تو تقسیم کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ ڈکارا ایسوسیشن میں اور اپنی طرف سے. اس کے ساتھ ہمارے خالی لطیف صابن والا صاحب ہیں جو سابق صوبائی وزیر رہ چکے ہیں نگراں حکومت کے اندر. ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے سینیٹر وقار مہدی صاحب ماشاءاللہ آپ کے
मौजूद मेहमान में से हैं और आपके साथियों में से हैं सर, तो मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। हमारे सेनेटर सादत अवान साहब, माशाल्लाह सर, जब भी कराची में हमारी तकरीब होती है, सादत अवान साहब, कादर मंतोकल साहब और वकार मेहदी साहब अगर तकरीब में ना हो तो तकरीब जो है ठीक ही हो जाती है। सर शुक्रिया सादत अवान साहब। अब्दुल कादर मंदोखल साहब हमारे रुकन कौमी असेंबली में रह चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है और दोराजी कम्युनिटी से है। हम खुश आमदेद कहते हैं। इनके साथ हमारे जो है आरिफ पंजाबी साहब, मेमन में से पंजाबी है सर, और वो है आरिफ पंजाबी, माशाल्लाह बड़ा समाजी काम कर रहे हैं। इनके साथ हाजी मसूद पारेख साहब हमारे मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि आपको एक मेमन साहब ने बताया कि हाजी मसूद पारेख साहब को इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा जा रहा है। और दूसरी मरतबा जो है मेमन बरादरी में का ये एजाज़ है, दूसरी मरतबा इनको तमग़ा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। अख्तर अरफा साहब हमारे चेयरमैन है मेमन लीडरशिप फोरम के, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मेमन कम्युनिटी के अंदर, और अपने अनिस्ट अप्रैल के नाम से पेशा भी चलाते हैं। कफील बनी साहब हमारे सीनियर बैंकर भी है। रयाजुल साहब भी माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन है। अब्दुल जब्बार राठौर साहब जो ड्रीम वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जामरा साहब जो है, ये अल्ताफ जामरा साहब मंडला मोटर के सीईओ भी है। अल्ताफ जामरा साहब वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी दुनिया के जिक्र किया कि पूरी दुनिया के अम्ब्रेला है, उसके यहाँ पर पाकिस्तान में जनरल सेक्रेटरी है। हम सर इनका आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। इनके साथ हमारी बिरादरी के अंदर काफ़ी लोग आपका जक्रिया साहब बैठे हैं और किसी का नाम अगर भूल जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। और सर हमारी तकरीब में जो है मेमन बिरादरी की ख़वातीन की किसी से पीछे नहीं, हमारी मेमन बिरादरी की जो ख़वातीन है, हमीदा इकबाल साहिबा जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ जब तशरीफ लाई हैं, मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। और ये हमीदा इकबाल साहबा वो हैं जो सर के हैंड से इदारा है डॉक्टर गफ़ार बिल्लू का, वो डॉक्टर गफ़ार बिल्लू का जो इदारा जो है उनको भी इन्होंने हाल ही में दो एम्बुलेंस से जो है वो फ्री ऑफ फराहम की। और सिर्फ सर ये जो लेडीज ही है ना, ये खुद अपने रिसोर्सेज से पैसे जमा करके वो एम्बुलेंस से दिए और डॉक्टर गफ़ार बिल्लू को 25 लाख वाला का मोहताज के तारुफ के मोहताज नहीं हमारे सिद्दीक अगर साहब यहाँ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। हनी पोटनानी साहब ने भी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। सरजील गोकुलानी साहब भी आए हुए हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर कहने का मकसद ये, मेमन साहब भी जो है वो भी शख्सियत भी मौजूद है कि सर प्रेसिडेंट हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, गवर्नर हाउस हो। शबीर अब्दुल तालिब साहब जो है वो भी हमारी तकरीब में मौजूद है, उनका भी ताल्लुक मेमन बिरादरी से है। सर मेमन बिरादरी जो है नहीं, और मेमन बिरादरी का जो काम है वो पूरी मकसूद मेमन साहब की किताब की तकरीब रहनुमाई में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहतरम फ़ारूक रेड्डी साहब। आप क्या कहेंगे आज ये मेमन शख्सियात के बारे में जो इन्होंने किताब का इजरा किया है, इस बारे में इज़हार ख्याल फरमाएँ। ये बहुत अच्छा काम है। मकसूद मेमन साहब ने एक बहुत अच्छी काविश है इनकी, अल्लाह इनको खुश रखे। इन्होंने जो काम किया है सबको उजागर किया है। मेमन बिरादरी का जो कारोबारी शख्सियात जो इनकी खिदमत है उसके लिए मैं इनको ख़ास तौर पे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मेमन बिरादरी ने कभी भी खिदमत में पीछे हटी है किसी की भी, चाहे कोई कौम और नस्ल नहीं देखती और सबकी खिदमत करती है। इवन यहाँ तक मुस्लिम गैर मुस्लिमों की भी इंसानियत की खिदमत करती है, जिसके लिए हमारे माशाल्लाह हाजी रफ़ीक परदेसी साहब है, मकसूद मेमन है, और ये शब्बीर अबू तालिब है, काफ़ी अकील करीम रेड्डी साहब है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। हाजी उस्मान परदेसी साहब आज शाम को उन्होंने नादरा रिलेटेड भी काम किया था, वो बेचारे दिन रात लगे होते काम में। तो अल्लाह ताला उनको जज्बा, इनके पास जो जज्बा है, अल्लाह उनके जज्बात को आगे बढ़ाए और इनको कामयाब करे। बस बहुत शुक्रिया। कर दें अपनी कम्युनिटी के हवाले से, तो मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं हमारे मुल्क के, तो हम सबको आगे आना चाहिएगा, आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग इस तरह के इवेंट हर चीज़ें तो बहुत कर रहे हैं,
जो बेसिक इशू है, जो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो कल कर जाएगी, तो हमको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हमारा कंट्री, तो हम सबको आगे आना चाहिए, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक के बिल में सपोर्ट करें 300 यूनिट के, और इसके अलावा जिस तरह महंगाई परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती जा रही है, 20%, 25%, 30%, तो जितने भी साहिब हैसियत हैं, फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जमातें हैं, उसी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम डिस्काउंट देना शुरू कर दें, अगर कोई अपनी कम्युनिटी के, अपने करीब के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच। जी, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा मोहतरम अतीक मीर साहब। क्या कहेंगे, आज ये मकसूद मेमन मोतीवाला साहब की किताब की तकरीब रहनुमाई में आप तशरीफ़ लाए हैं, इस बारे में क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे? देखिए, एक बड़ी पुरवकार तकरीब है और मैं देख रहा हूँ कि इसमें जिस जोश और जज्बे से मेमन बरदरी माशाल्लाह तशरीफ़ लाई है, और ऐसी किताबें जो आगाही फराम करें, जो एक कम्युनिटी के बारे में मालूमात से पूर्ण हो, ये हर बरादरी को चाहिए कि उसमें किताबी शक्ल में अपनी बरादरी के बारे में वो आगाही फराम करें। इससे क्या है जी, आज देखें जिस हम देख रहे हैं ये मेमन सुप्रीम कौंसिल जो मकबूल तरीन हो चुकी है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ आज साफ़ी भी बहुत सारी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जिस जज्बे से इसको उजागर कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुस्तहसन एक इक़दाम है। तो ये जज्बा ये किताब लॉन्चिंग का, इसने मेमन कम्युनिटी को इस हद तक मकबूल कर दिया है कि माजी में भी गुजराती और मेमन ये एक हैसियत रखते थे, लेकिन अब किताबों के ज़रिए, तकारीब के ज़रिए, इस तरह के एक खूबसूरत फंक्शंस के ज़रिए अब इसमें जो इज़्ज़त अफजाई है, जो इनकी एक दुनिया में शनाख्त है, ये इससे कबल कभी नहीं थी। माशाल्लाह अतीक मीर साहब, सारे डॉलर बढ़े। अतीक मीर साहब, इस वक्त महंगाई के हवाले से मुल्क भर के ताजरों की तहरीकें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं, और आपकी भी तंजीम की और इदारों की हमने देखी, तो अब क्या कहेंगे कि ये सारी ताजी तंजीमें मुश्तरका हो गई, किसी एक प्लेटफार्म में महंगाई, बिजली के बिल में कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगी आवाम के लिए? देखिए, जब बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक गैर एलानिया तौर पर लोगों के बीच एक इत्तेहाद कायम होता है। कराची की ताजिर बरादरी इतनी मुत्तहिद माजी में कभी भी नहीं थी जितनी अब है, इसलिए कि हर एक को अपनी मुआशी बहुत नजर आ रही है, हर एक का कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और आज हम देख रहे हैं कि बिजली का बिल, ऐसा सोचा भी नहीं था कि 90% लोगों में सकत नहीं है कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें। ये सबब है आज कराची के ताजरों ने जब एक तहरीक का आगाज़ किया और एहतजाज किया इसके ख़िलाफ़, तो सारे मुल्क में लोग उठ खड़े हुए, और आज देख रहे हैं आप कि एक तशद्दुद की लहर, और जिस तरह लोगों के अंदर एक अदम बर्दाश्त की कैफियत पैदा हुई है, ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं मौजूदा हुकूमत से यही इस्तदा करूँगा कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको रोका जाए, हकीकी मसाइल का इदराक किया जाए, और वरना मुझे लग रहा है कि अगर ये इसी तरीके से ये अनारकी फैल गई तो शायद हम मज़ीद मुश्किलात में आ जाएं। तखरीबकार इसका फ़ायदा उठाएंगे, दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह बिजली के दफातर पे हमले हो रहे हैं, उनके हमले पर तशद्दुद हो रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। इसे रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया। 10 बिलियन नहीं बल्कि 42 बिलियन की लागत से, आई रिपीट 42 बिलियन की लागत से ऑलरेडी उसका संग बुनियाद रखा जा चुका है। सिविल एविएशन से जमीन ले ली, एयरपोर्ट के साथ साथ 7 एकड़ पे जमीन है, बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसका कंसल्टेंसी दिया जा चुका है। इंशाअल्लाह ताला 7+3 बिल्डिंग की 3 नीचे की तरफ होगी, 7 मंजिल ऊपर होगी। इंशाअल्लाह ताला कराची के 10,000 बच्चों को इंशाअल्लाह ताला नौकरियां मिलेंगी आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। दैट्स व्हाट वी हैव डन। मैं समझता हूं कि मेमन कम्युनिटी के साथ एमकेएम का बेहतरीन वर्किंग रिलेशन मौजूद है। हमारे पास फारूक सत्तार हो, बाबा कराची रह चुके, वफाकी वजीर रह चुके, सूबाई वजीर रह चुके, महमूद अब्दुल रज़ाक हो, हमारा सूबाई वजीर रह चुका है। और शायद पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, 1988 हो या 1990 का इलेक्शन था,
डॉक्टर रफीक सानी मेमन कम्युनिटी से थे, वो भी इस शहर से कौमी असेंबली के रुकन रह चुके हैं। बारे में क्या फरमाएंगे? इस किताब की तकरीब इजरा हो रहा है आज। ये मेमन दी हिस्ट्री मेकर, ये मकसूद मोती वाले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसका बहुत बड़ा कदम है हमारी मेमन जो शख्सियात हैं उनकी हिस्ट्री कंपाइल करने में। ये इसका इस कौम के ऊपर एहसान है और मैं अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं, आप माशाल्लाह ताजिर रहनुमा है और ताजिरों की तहरीक माशाल्लाह बहुत ज़ोर पकड़ रही है। आपकी भी तंजीम की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा वगैरह देखा गया, और क्या कहेंगे अभी इससे अवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा या फिर ताजिरों को किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा? कुछ उम्मीद रखते हैं इस बारे में? देखें, ये तहरीक जो हमने शुरू की हुई है कराची ताजिर तहरीक और रोज़गार तहरीक, इसमें आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आवाम बाहर नहीं आएगी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। आज तक आवाम ने सियासतदानों का तो साथ दिया और आज मुल्क का ये हाल हो गया। आज हम अपने हक़ के लिए खुद निकलें, क्योंकि हम भी अवाम हैं। हम आप में से, आप हम में से, अब हमें अपने हक़ के लिए खुद निकलना पड़ेगा। और हम धरने की कॉल देते हैं, आप लोग हमारा साथ दें। जब तक आप हमारे साथ बैठेंगे, चाहे 8 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, हम रोडों पर बैठ के अपना हक़ लेके घर जाएँ। देखिए, हमारे बच्चों के मुँह से निवाला छीना जा रहा है, हमारे भाई बहन खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हुक्मरानों के कान पर जूं भी नहीं लग रही, उनकी अय्याशियाँ आज भी जारी हैं। लॉन में बैठ के ऐसे चल रहे हैं और हमारे पास पंखा चलाने के लिए भी बिजली का बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। तो आप फौरी तौर पर हम जो भी अनाउंस कर रहे हैं एहतिजाज का, आप लोग तमाम लोग हमारे साथ दें। जब आप साथ देंगे तो हम कामयाब होंगे, और हम कामयाब होंगे तो आप कामयाब होंगे। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हमारा मकसद महंगाई को कंट्रोल करने का, हमारा मकसद रोज़गार का मामला सही करने का, हमारा मकसद हमारी बेसिक नीड्स है, पानी बिजली गैस हमारे नलों में आए, हमारे पाइपों में आए, हमारे घरों पर आए। हमारा और कोई मकसद नहीं है। और हमारा रोज़गार का मामला लो, जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे ये कौम को नोच नोच के खा जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। हनीफ साहब, हनीफ भाई, हनीफा सर, सर शर्जील साहब, सर थोड़ा सा सर सामने की तरफ, सर थोड़ा सा मोहतरम जनाब बशीर मुंशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाएं, जिनकी बड़ी अली मुर्तज़ा खान जी साहब नवाब ऑफ जूनागढ़, अगर वो तशरीफ फरमा है तो बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मैं फैसल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और उनकी शी वसूल करें। फख्र के साथ कह सकते हैं मुख्तलिफ NGOs और समाजी हवाले से भी वाबस्ता हैं। हसनैन परदेसी मौजूद नहीं है, तो मैं हाजी रफीक परदेसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी हसनैन का ये अवार्ड लें कल, लेकिन मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेडरेशन मोहतरम जनाब हनीफ हारून साहब को, चूँकि वो मौजूद नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके साहबजादे अहमद रजा से कि वो हनीफ हारून साहब से उन्होंने न सिर्फ मदद की बल्कि इनकी खिदमत के अतराफ के तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने इनके वालिद मरहूम हाजी अब्दुल रहीम गीगा परदेसी को गोल्ड मेडल से नवाजा। इनके जमाल डेवी साहब से कि बराए मेहरबानी इसके बाद वो अपना अवार्ड वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल एडवानी साहब और CEO सेविंग होम्स, चेयरमैन एडवानी फाउंडेशन, जिसके जरिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज के मेज़बान भी हैं। आपका ताल्लुक उसी जमात से है जिस जमात से मेरा और हनीफ साहब का है। मोहतरम जनाब माना मदर सरदार कटबीमन जमात से अरसा दराज से वक्तन फ़वक्तन शहर कराची की और मुफ्त मेडिकल कैंप के हवाले से, अदवायात के हवाले से मुत्तहदा अरब इमारात MLF प्लेटफॉर्म से भी समाजी फलाही खिदमत सर अंजाम देते हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल एडवानी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद वार्ड मेंबर के चैप्टर के हवाले से खालिद करीम डेडी साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मैं जमा लेता हूं, मुझे बड़ा फख्र होता है पाकिस्तान ने 2 मरतबा अवार्ड से नवाजा है और ये हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा एजाज है। मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारिक साहब, पुरज़ोर तालियां होनी चाहिए इनकी शानदार खिदमत पर। हाजी मसूद पारिक साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद आमिर रज़ाक टेस्टी, आमिर रज़ाक, आमिर चूंकि यहाँ थोड़ी देर पहले तो मौजूद थे। हाजी अब्दुल रज़ाक टेस्टी साहब जिनकी बड़ी जबरदस्त खिदमत रही, जिनकी बड़ी जबरदस्त खिदमत रही। सामने
मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्ताफ जरमला साहब के अवार्ड वसूल करने के लिए मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार राठौर साहब को के बराए मेहरबानी को तशरीफ लाएं और मोहतरम वो एक जज्बात का भी एक इजहार। उनसे रोशन कोई देखे तो चरागों का फरोजा होगा। तो अब हम अपने ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनकी खिदमत में ये अवार्ड होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मकसूद मेमन साहब से, दोनों मेजबानों से, हाजी रफीक परदेसी साहब से कि आप सबसे के बहुत सारी तालियां बजाएं ताकि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान को हम अपने हाथों से इनकी जबरदस्त खिदमत पर सर आज और HMR एक ऐसा ग्रुप कि जिसने न सिर्फ कराची में, दुबई में, दीगर ममालिक में भी अपनी और उनका अवार्ड उनकी खिदमत में पेश करें। और हमें भी अपनी कम्युनिटी को एक नए रूप में लेके जाना पड़ेगा। अब नॉलेज इंटेलिजेंस का काम करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने IT में या नॉलेज इंटेलिजेंस में अगर काम ना बढ़ाया तो हम दूसरी कौमों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। आज यहाँ पे कौम के बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, सर आप भी बैठे हुए हैं, अफरीद भाई, हमें अपनी कौम को बहुत आगे लेके जाना है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों ने मेहनत ना की तो शायद हमारी कौम कहीं किसी नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला कहीं नाम ही ना रहे। तो हम लोगों को मिलजुल कर मेहनत करनी पड़ेगी। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी में उजाला जमात के चंद बच्चे नासा तक गए और वहाँ से बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स लेकर आए और एक ऐसा रास्ता करके आए कि इंशाल्लाह ताला आने वाले अब चंद बच्चे गए, अब इंशाल्लाह अगले साल और बहुत ज़्यादा बच्चे जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि मेमन कम्युनिटी से भी और पाकिस्तान से जितने भी बच्चे हैं हम अपने बच्चों को जितना हो सके हाईलाइट करें, हमारे एजुकेशन के काम को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज जैसे पेट्रोल, डायमंड, गोल्ड, इन कंपनियों में आज आपको सिर्फ अगर कोई ट्रिलियंस मिलेगा तो सिर्फ एक ही ट्रिलियन आज मिलेगा, वो आराम को। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे मकसूद मेमन मोतीवाला की किताब की रोनुमाई हो रही है। तो यहाँ पे मशहूर और मारूफ समाजी रहनुमा ऑपलेटा मेमन जमात के सदर मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारिक साहब मौजूद है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये तकरीब आपको कैसी लगी सर, ये जो कि मुनक़िद की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तकरीब बहुत अच्छी थी, मेमन बरादरी की क्रीम थी और मकसूद मेमन हर साल करता है, लेकिन इस साल इसका प्रोग्राम बहुत लाजवाब था। मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ और उसकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। सर ये मेमन मीडिया जो कि काम कर रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेमन मीडिया के आने से बरादरी में बहुत शऊर आया है और हमें इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए मेमन मीडिया का, ताकि छोटे बड़े जो प्रोग्राम जो नेशनल चैनल कभी नहीं दिखाता हमारी बिरादरी का, ये हमारे मेमन चैनल जो दिखा रहे हैं इसको हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अमीन आजम जी साहब। आप माशाल्लाह मकसूद मेमन मोतीवाला की किताब की तकरीब रनमाई तशरीफ़ लाएँ जो मेमन शख्सियात पर लिखी गई हैं और माशाल्लाह आप हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब सरपरस्त आला अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। आपने हाजी साहब का अवार्ड भी वसूल किया, बड़ी खुशी हुई। हाजी साहब के भी जिक्र इस किताब में शामिल है, क्या कहेंगे इस किताब के बारे में? माशाल्लाह मैं सबसे पहले तो ये मकसूद मेमन पूरी टीम को, करीम मेगानी पूरी टीम मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये माशाल्लाह मेमन बिरादरी के लिए ये जो इस तरह की किताब है इसको उजागर करते हैं कि मेमन बिरादरी क्या काम कर रही है, क्या काम किया है और आइंदा क्या प्रोग्राम है। हाजी हनीफ तैयब साहब ये माशाल्लाह सारी ज़िंदगी इन्होंने कौम की खिदमत की, बिला लंगो नस्ल अल मुस्तफ़ा के हवाले से हो चाहे फेडरेशन के हवाले से हो, हाई साहब ने बड़ा काम किया है। इसी एवज हाई साहब को भी सील पेश की गई है। मैं हाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको शहीदी साहब के माशाल्लाह हमारे मेमन बिरादरी का जो प्रोग्राम कवरेज करते हैं इनको भी मेरी शुक्रिया अदा करता हूँ। घूम ना घूम हमारे प्रोग्राम को कवरेज करते रहते, अल मुस्तफ़ा के प्रोग्राम भी हो चाहे मेमन बिरादरी के प्रोग्राम भी हो, माशाल्लाह ये अच्छी एक्टिविटी का किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन आजम जी साहब। अपने नई जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों की कदर करें, बिल्कुल कदर करें। उन्होंने दिन रात आपके लिए मेहनत की है। मैं अगर अपनी छोटी सी स्टोरी सुना दूँ, मेरे दो उस्ताद बैठे हुए हैं
दोनों मोहतरम वकार मेहदी साहब और शादात अवान साहब ये मेरे हाउस में, ये दोनों मेरे उस्तादों की तरह है, मैं इनसे सीखता भी हूँ, मेरे सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। तो और मंदुखेल साहब आपके बारे में मैं कह दूँता हूँ, मेरा एक बिल था, तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी मैंने रिक्वेस्ट की मंदुखेल साहब ने, उन्होंने कहा सर आपने कह दिया तो काम हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये बड़ा कमिटेड आदमी है। तो मैं आपकी वो बात मुझे याद है, इसलिए मैं यहाँ कहना ज़रूरी समझा। अच्छा जी रईस साहब, मैं वो बात जो करना चाह रहा था उसकी वो कंटिन्यूस कर लेता हूँ। मैं एक आज से 16 साल पहले मेरे वालिद साहब ने सिंगापुर में हम रहते थे तो पाकिस्तान आए, तो मेरे वालिद साहब ने ना मुझे फैक्ट्री लेके गए और मुझे स्टोर कीपर बनाया, मेमन वाला काम किया, मुझे स्टोर कीपर बनाया। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह करते हैं, सिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर बड़ा आदमी बनाते हैं। तो मैंने कहा वालिद साहब मुझे सिंगापुर से लेके आके आपने मुझे कंपनी में स्टोर कीपर बना दिया। अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मुझे 1600 रुपये तनख्वाह देते थे। मैं बिज़नेस के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो 1600 रुपये तनख्वाह देते थे मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने परचेज़र बनाया, फिर सेलमैन बनाया, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घुमाया, फिर वो सेल रिकवरी एंड परचेज में बना दिया। उसके बाद मुझे डायरेक्टर बना दिया। सदर भी रहे हैं भाई आदित्य मेमन साहब, बहुत सारी आदमी का तशरीफ में है सर। तो सब जगहों पे पूरे पाकिस्तान भर में जो मैसेज दिया है ना, लोगों को अब आसान हो गया माशाल्लाह कि लोगों को किस आदमी के लिए किस काम के लिए कांटेक्ट करना है। तो मेमनों के सारे प्रोफाइल उसके अंदर आ गए माशाल्लाह, अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंपनियों के। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। इस तरह का काम मैं तो समझता हूँ और ये ज़्यादा काम बढ़ना चाहिए और किताब और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि और लोगों का मैसेज पाकिस्तान कम्युनिटी को पहुँच जाए माशाल्लाह। अच्छा सर, अभी मुल्क पाकिस्तान की मस्जिद का हाल बेहाल हुआ है, वहाँ की मस्जिद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉलर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी मेन इशू है हमारा। मैंने अपनी तकरीर में भी यही कहा कि लोग अकीदतमंद ज़्यादा ढूंढते हैं और अक्लमंद कम ढूंढते हैं। अब इस मुल्क के लोग अगर अक्लमंद नहीं ढूंढेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे ये बताओ। असल काम अक्लमंद लोग करते हैं। अकीदत अपनी जगह पे है, वो मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन अगर अकीदतमंद जिसे आप अकीदत करते हो और उसमें अकल नहीं है तो फ़ायदा क्या उसे वोट देने का? वोट उसे दो जो तुम्हें काम आए, चीज़ों को आगे बढ़ाए, आपकी चीज़ों को सिस्टम को ठीक करे। सिस्टम ठीक नहीं होंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे ये बताओ, नहीं चल सकता आज से। अच्छा सर, मेमन न्यूज़ जिस तरह कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह, यंग जनरेशन जो काम कर रही है माशाल्लाह, सलाम है इनको। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़े और हमारी दुआएं कि ये बहुत आगे बढ़े माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखना, शरीयत अव्वल है, पर्दा कर, औरतों का ज़रा पर्दा ख़ास ख्याल रखना। आजकल हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया की दुनिया बिल्कुल अलग चली गई है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो अलग चली गई हैं और जो गंदगी में जाते हैं या बेपर्दा जाती हैं, एंड ऑफ द डे इन्हें प्रॉब्लम ज़रूर होगा। बापर्दा बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। हमारे जो ऑनर है फरीद जुलानी साहब, उनका एक ही इनिशिएटिव पे मेमन लैंग्वेज को आगे लाना, मेमन कम्युनिटी के लोगों के जो टैलेंट है ना, टैलेंट को उजागर करना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह थोड़ी मेमन लैंग्वेज आगे थे करेंगे तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो कहता हूँ मेमनी मुशायरा भी होना चाहिए। आप करवाओ, काम करवाओ, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फल मिलेगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। आप काम अगर चाहते हो कि कुछ आबाद हो जाए और काम को आगे बढ़े तो मेहनत करो। शुक्रिया। मकसूद मेमन साहब मोतीवाला साहब मौजूद हैं और इनकी किताब का आज इफ्तिताह भी किया गया और यहाँ पे समाजी मेमन बिरादरी की शख्सियात मशहूर व मारूफ और उन्होंने शिरकत की। तो अभी मकसूद भाई के हम पूछेंगे कि ये तकरीब आपको कैसी लगी और आपने क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीब के अंदर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, IMO, मेमन लीडरशिप फोरम और बहुत सी जो है इदारों से वाबस्ता लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। जैसा कि आपने देखा इस तकरीब के अंदर सेनेटर साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, जमातों के सदर, जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पर मौजूद थे। आज की तकरीब मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल करीम मेघानी साहब और
सेविंग होम आडवाणी फाउंडेशन के रूए रवा इकबाल आडवाणी साहब के जो है उनके ताउन से जो है तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की तकरीब के अंदर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब इस्लामाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई की। और सिर्फ खालिसतन शहर कराची के अंदर इस तकरीब के अंदर में शिरकत करना बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज़ है। और वो बहुत खुश हुए मेमन बरादरी की इस तकरीब में। और उन्होंने अपना बड़मला जो है अपना इज़हार किया और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया मेमन बरादरी की खिदमत को। तो आप देखें कि मेमन बरादरी की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है और पूरी दुनिया के अंदर मेमन बरादरी जो है वो एक निशान है, एक काम के समाजी कामों में एक बहुत बड़ा नाम है। और मेमन बरादरी ये काम जारी और सारी रखेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेघानी साहब। आज आप भी इस तकरीब के रूए रवां रहे। मकसूद मेमन मोतीवाला साहब ने जो अपनी किताब की तकरीब रहनुमाई रखी, इस बारे में आप क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब मेमन गुजराती सुप्रीम कौंसिल की जानिब से मकसूद मेमन की किताब की इजरा के सिलसिले के अंदर मुनक़िद की गई। तकरीब के अंदर मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मोहम्मद मिर्ज़ा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सदारत थी बिजनेस टाइकून हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की। और हमायदीन शहर ने शिरकत की। इसमें कादर मंदोखेल साबिक MNA, सेनेटर सादत अवान, सेनेटर वकार मेहंदी और खाली लतीफ़ साबनवाला साबिक सूबा